हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। So autumn is the season that falls between summer and winter. There are many changes that begin in this fascinating season. Days become shorter, leaves of trees turn from green to vibrant red, yellow and orange. Trees need sunlight to keep their leaves lively green. Without sunlight, leaves change colors. The grass is no longer blanketed with dew but with frost. Almost every morning, as temperature reach the freezing point, animals start storing up a food supply to last through the long winter months. These changes occur as we adjust from the heat of the summer to the chill of the winter. Okay, now on the basis of your understanding, on the basis of your reading of the above passage, choose the correct option. Autumn falls between summer and autumn आती है summer और winter के बीच में, between summer and winter season. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज में अकर ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम में क्या चेंजेस होते हैं? डेज शॉर्टर हो जाते हैं, लीव्स का कलर चेंज हो जाता है और ग्रास पर अभी ड्यू नहीं होती, फ्रॉस्ट होती है। सो एक ही ऑप्शन सही है। वाई डू लीव्स चेंज देयर कलर ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम में लीव्स कलर क्यों चेंज करती हैं? क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत है लीव्स को ग्रीन रहने के लिए। बिना सनलाइट के उनका कलर चेंज हो जाता है। सो बिकॉज दे डोंट get enough sunlight. How do animals begin to prepare at the end of autumn? ऑटम में वो कैसे एनिमल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को? तो वो फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आगे लॉन्ग विंटर आने वाली है, उसके लिए स्टोर एक्स्ट्रा फूड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट चेंजेस अकर इन ऑटम सीजन, एक्सप्लेन। ऑटम सीजन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सो नंबर से आप लिखेंगे। नंबर 1, डेज बिकम शॉर्टर। नंबर 2, लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न फ्रॉम green to vibrant red, yellow and orange. Number 3, the grass is no longer blanketed with dew but with frost. And number 4, animals start storing up a food supply to last through the long winter months. Next, now read the following passage carefully. On the basis of your reading of the passage, answer any 5 questions that follow. Write the answer in proper sentence in about 20 to 30 words. Okay. About 1 in 5 of the people in the world follow the teachings of the Buddha, who lived about 2600 years ago. He was born in 563 BC before Christ. The Buddha is a title, not a name. It means the enlightened one or one who knows. The Buddha's real name was Siddhartha. He and his family were all Hindus and belonged to Gautam clan. Gautam Siddhartha was brought up in luxury. He lived in his father's palace and saw nothing of the outside world until he was a young man. Then one day, accompanied by his charioteer Channa, Prince Siddhartha went round the city. On his way, he saw some sights that he had never seen before. First, he saw a man who was way too old and was bent with age. Then he saw a man who was suffering from a terrible disease, possibly leprosy. Then he saw a dead man who was being taken to the cremation ground. These sights made the prince very sad. Now a complete change came in Gautam Siddharth's life. He was filled with a longing to find the cause and cure of human suffering. He wanted to find the true meaning of life and help his fellow men. Although he was married and had a baby son, he left his home in search of truth. He was then only 28. First of all, Gautam went to Hindu priests. He wanted to know from them the causes of human suffering, but the priests could not give him any satisfactory answer. Now Gautam tried to live the life of an ascetic for 6 मतलब तपस्वी. For 6 years he tortured himself so that he could become indifferent to any kind of pain. Indifferent मतलब कोई फर्क ही ना पड़े उनको पेन से. He was reduced to mere skeleton, but eventually he realized that all this was foolish and useless. Now he sat in deep meditation under a bodhi tree near Gaya in Bihar. Here at last he attained enlightenment and found the answer to his questions when he was 35 years old. Okay, now first question is, how many people in the world follow
द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। सो बुद्धा की टीचिंग को कितने लोग फॉलो करते हैं? अबाउट 1 in 5 ऑफ ऑल द पीपल। हर 5 में से एक आदमी फॉलो करता है टीचिंग ऑफ बुद्धा को। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट इज व्हेन वॉज बुद्धा बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन 563 BC। नेक्स्ट इज हु वॉज चन्ना। चन्ना कौन थे? उनके चैरिटियर, जो चैरियट को रथ चलाते थे। ही वॉज अ चैरिटियर। नेक्स्ट इज व्हाट लॉन्गिंग डिड गौतम फील्ड व्हेन ही वॉज 28। जब वो 28 के थे तो क्या वो चाहते थे? ही वॉज फील्ड विद द लॉन्गिंग टू फाइंड द कॉज एंड क्योर ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन बींग क्यों सफ़र करते हैं, क्या उसके कारण है और उसका क्योर क्या है। वाई डिड गौतम गो टू हिंदू प्रीस्ट्स। हिंदू प्रीस्ट्स के पास वो क्यों गए थे? यही जानने के लिए। ही वेंट टू हिंदू प्रीस्ट्स टू नो फ्रॉम देम द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग का कॉज जानने के लिए। वाई डिड गौतम स्टार्ट लिविंग द लाइफ ऑफ एन एसेटिक तपस्वी की लाइफ उन्होंने जीना क्यों शुरू किया? बिकॉज द प्रीस्ट कुड नॉट गिव हिम एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर। प्रीस्ट ने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट राइटिंग एंड ग्रामर। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक पर 80 वर्ड्स में पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। माई स्कूल लाइब्रेरी, द सीजन आई लाइक मोस्ट एंड माई जर्नी। सीजन आई लाइक मोस्ट में ऑटम के बारे में लिख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस पैराग्राफ से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट नाउ राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट 4 days लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज इन डिफरेंट सिटी। किसी दूसरे शहर में आपके भाई की शादी को अटेंड करने आपको जाना है तो 4 दिन की छुट्टी के लिए एक लीव एप्लीकेशन आपको लिखनी है। या फिर इसके और में है स्टोरी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 day प्रिया वॉज गोइंग टू स्कूल। एक दिन प्रिया स्कूल जा रही थी। ऑन द वे उसको क्लाउड्स दिखे स्मोक के, धुएं के, फ्रॉम अ बिग हाउस, एक बिग हाउस से। फिर आगे क्या हुआ इसको आप देख लेंगे। ये देख लेते हैं एप्लीकेशन। सो इस तरीके से आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, विद्यालय का नाम, डेट, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, सर और मैडम। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड आई फील वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई ब्रदर इज़ गोइंग टू गेट मैरिड ऑन दिस डेट। कुछ दिनों के बाद की डेट 12 जुलाई 2023। सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 4 days बिकॉज आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर हिज वेडिंग। उनकी शादी के लिए मुझे दिल्ली जाना है तो इसलिए मैं 4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊँगी। सो काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव। मुझे 4 दिन की छुट्टी ग्रांट करें। और वो 4 दिन कौन से हैं? फ्रॉम 10th जुलाई टू 14th जुलाई। हाई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। आपका नाम और क्लास। नेक्स्ट नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। ओके, ये हो चुका है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको आप कर लेंगे खुद से यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। अप्रोप्रिएट ये फ्रेजल वर्ब्स गिवन है, इनको यूज़ करके स्टोरी कंप्लीट करनी है। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हेल्ड अप मतलब कोई चीज़ आपको बिजी रखे हुए हैं। लेट ऑफ मतलब जाने देना, किसी ने कोई गलती की है लेकिन आपने जाने दिया उसको। सेट असाइड कुछ साइड में रखना। स्टे अवे दूर रहना। सो मदर वॉज लेट बिकॉज शी वॉज ब्लैंक एट दी ऑफिस। सो मदर वॉज लेट बिकॉज शी वॉज हेल्ड अप, वो बिजी थी ऑफिस में। एज यू डोंट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। आई वॉन्ट यू टू ब्लैंक फ्रॉम द पॉन्ड, मैं चाहता हूँ यू शुड स्टे अवे, यू टू स्टे अवे, दूर रहो तुम पॉन्ड से। यू मस्ट ब्लैंक सम मनी फॉर द इमरजेंसीज़ के लिए तुम्हें कुछ पैसे को यू शुड सेट असाइड, साइड रख लेना चाहिए। द स्टूडेंट हु मिसबिहेव्ड इन द क्लास, जिस स्टूडेंट ने क्लास में मिसबिहेव किया, वर ब्लैंक विद अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, उनको जाने दिया गया एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग के साथ, वर लेट ऑफ। नाउ राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। नेहा पूछती है ब्लैंक डू यू गेट दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग। सो उसने टाइम बताया, कल सुबह मुझे ये बुक मिली। उसने पूछा होगा व्हेन, कब तुम्हें ये बुक मिली। ब्लैंक इज़ योर सिस्टर क्राइंग, बिकॉज से शुरू हुआ है आंसर, क्योंकि उसकी डॉल जो है वो खो गई है, तो उसने रीज़न पूछा होगा वाई। नेक्स्ट इज नेहा पूछती है ब्लैंक रूम इज़ दिस योर्स और हर्स, ये किसका रूम है। सो हुज रूम इज़ दिस, उसका या फिर तुम्हारा। इट्स आर्स, हमारा है। नेहा ब्लैंक डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाई, हम वॉक करके स्कूल जाते हैं, पास में ही है। तो नेहा ने पूछा होगा कैसे तुम स्कूल जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। Now add the prefix to make the appropriate word. Un, ir, di, in, this. Lock, unlock, agree, disagree, motivate, demotivate, active, inactive, opposite बन रहे हैं ये, regular, irregular.
Okay, now rearrange the following words or phrases to make meaningful sentences. All been eaten mangoes the have. All mangoes, all the mangoes have been eaten. All the mangoes have been eaten. Also removes from fasting poison the body. Fasting also removes poison from the body. फास्टिंग बॉडी से पॉइजन को भी रिमूव करती है. वेयर दीज पीपल अ मेजॉरिटी ऑफ डेज अ वॉच. दीज डेज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर अ वॉच. आजकल ज़्यादातर लोग वॉच पहनते हैं. 6, 7. टाइम इन मेजर्स सेकेंड्स एंड आवर्स मिनट्स. टाइम मेजर्स इट, इसे टाइम मेजर करता है इन सेकेंड्स. 1. टाइम मेजर्स इट इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स. Okay, next. Now section C, literature. Read the stanza given below and answer the questions that follow. So trees are to make tree houses in. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under trees. Trees are to make cool shade in summer. Trees makes mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaves to rake the fall. First is, what do the children do with the trees? बच्चे क्या करते हैं trees में? They play hide and seek. They play hide and seek. Also they make tree houses बनाते हैं उन पर और hide and seek खेलते हैं. How do trees meet our needs in summer? समर में वो हमारी नीड्स को कैसे फुलफिल करते हैं? by making cool shade, छाया हमें देकर, ठंडी छाया. what does mother say about the trees? मदर क्या कहती है ट्रीज के बारे में? what a lovely picture to paint. What does fall in the last line refer to? What a lot of leaves to rake the fall. कितनी ज़्यादा लीव्स हैं, अभी उनको रेक करना, इकट्ठा करना पड़ेगा. द फॉल, लीव्स का जो फॉल है उससे. सो फॉल, अच्छा सीज़न की बात की गई, वैसे सीज़न ऑफ फॉल हम बोलते हैं ऑटम को. सो डी ऑप्शन, क्योंकि उसमें पत्तियाँ ज़्यादा गिरती हैं. व्हाट डज द वर्ड रेक इन दी अबव स्टैंजा मीन्स? रेक करना मतलब गैदर करना, इकट्ठी करना. नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. दे गेट इट ऑल, ये क्वालिटी चैप्टर से है. और ये जो सेंटेंसेस हैं मिस्टर गेस्लर बोल रहे हैं, क्योंकि वो जर्मन के थे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी थी, एक्सेंट ऐसी थी. दे गेट इट ऑल, ही सेड. दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क. दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क. काम से नहीं, एडवर्टीजमेंट से उन्हें वो जो ऑर्डर्स हैं वो मिले हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. हुज लाइफ who love our boots, जो अपने हम जैसे लोग जो बूट्स को इतना प्यार करते हैं. it comes to this presently, अभी ऐसा टाइम आ गया. I have no work, कि मेरे पास कोई काम नहीं है. every year it get less, और हर साल ये कम होता जा रहा है. it gets less. you will see, तुम देखोगे. and looking never noticed before. bitter things struggle and what a lot of grey hair in his red beard. ये जो राइटर है वो कह रहे थे. फर्स्ट इज नेम द लेसन एंड द ऑथर. लेसन है क्वालिटी और राइटर है जॉन गैल्सवर्दी. व्हाट डज दे रेफर्स टू? दे किन की बात कही है? दे गेट इट ऑल. यहाँ पर बिग फर्म्स की बात मिस्टर गेस्लर कर रहे हैं. बिग शूज़ के जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं. व्हाट डज मिस्टर गेस्लर कंप्लेन अबाउट? उनकी क्या कंप्लेन है कि जो बिग फर्म्स हैं वो काम ले रही हैं एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है. सो हिज कंप्लेन इज दैट बिग फर्म्स गेट द वर्क बाय एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट डू बिग फर्म्स डू टू सेल देयर गुड्स? वो क्या करती हैं गुड्स को सेल करने के लिए? दे एडवर्टाइज देम वेल, अच्छे से उनको एडवर्टाइज करती है. नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अबव विच मीन्स सेम एज मार्क्ड. मार्क करना,
मार्क मतलब नोटिस हो सकता है, नोटिस्ड, और तो कोई वर्ड इसमें है नहीं. नेक्स्ट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स. फर्स्ट इज वाई डिड नेबर किल द डॉग. नेबर्स ने डॉग को क्यों मार दिया था? फ्रस्ट्रेशन और एंगर में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉग उनको भी कोई ट्रेजर, खजाना ढूंढ कर देगा, लेकिन वो उनको जो उन्होंने ज़मीन खोदी तो वहाँ से एक डेड कैट उनको मिली थी. सो द नेबर्स वर एक्सपेक्टिंग द डॉग टू हेल्प देम फाइंड अ ट्रेजर, जैसे कि उसने ओल्ड कपल को दिया था ढूंढकर. बट द डॉग टुक देम टू अ प्लेस, लेकिन वो उनको एक ऐसी जगह पर लेकर गया वेयर देयर वॉज फाउल स्मेलिंग, वेयर दे फाउंड अ डेड कैट, जहाँ पर उनको एक डेड कैट मिली. सो दे किल्ड द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. तो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने उस डॉग को मार दिया. नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव ही वॉज क्लेवर. किंग ने क्या कहा गोपाल को करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि गोपाल एक्चुअली में क्लेवर है. उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदनी है मार्केट से, उसको लेकर आना है पैलेस तक, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे. सो द किंग आस्क्ड गोपाल to buy a huge hilsa fish from the market and to ensure that no one should talk about to him about the fish. About the fish on the entire way, पूरे रास्ते में, from market to the palace, मार्केट से लेकर पैलेस तक, महल तक. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द विंडो ऑफ द शेड. शेड की विंडो कैसी थी? सो विंडोज ओल्ड थी, ओल्ड, डस्टी एंड डैमेज, टूटी हुई थी. क्योंकि 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, सो थोड़ा डिटेल में आप लिख देंगे. द विंडो इज़ कवर्ड विद डस्ट एंड दे वर ओल्ड एंड द ग्लास पेन्स वर ब्रोकन. ग्लास पेन्स टूटे हुए थे. एंड जो पोएट था, ही ऑफन फील्स, उसको लगता था कि समवन इज स्टेयरिंग एट हिम थ्रू द विंडो, कोई उसको विंडो से देख रहा है. एंड ही विशेज टू पीप थ्रू द विंडो वन डे, जब वो, उसकी विश थी कि एक दिन वो भी उससे झांक कर देखेगा. नेक्स्ट, या फिर इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट मेक मृदु कंक्लूड दैट बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स. मृदु ने ये क्यों कंक्लूड किया कि बेगर के पास पैसे नहीं थे चप्पल खरीदने के लिए? क्योंकि जब उसने पैर दिखाए अपने, तो उसमें ब्लिस्टर्स थे, छाले पड़े हुए थे पिंक कलर के. तो उनको देखकर मृदु, और वो बेयर फीट भी था, मृदु को लगा कि शायद उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए. तो सो द बेगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन and there were pink blisters on his bare feet. So Mridu concluded that the beggar had no money to buy chappals. Next, answer the following in about 100 words. ये long answer type questions हैं. A camel can do without water for many days. Camel बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. What is there as on to discuss. तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर डिस्कस करना है. So a camel can do without water for many days together because it sweats very little. बहुत हाई टेम्परेचर को वो स्टैंड कर सकता है, बहुत कम स्वेटिंग उसको होती है. Sweats very little. A camel can drink a lot of water. बहुत ज़्यादा पानी वो पी लेगा. At one time, एक बार में. They can stand high body temperature
and thus do not need to sweat. स्वेटिंग उनको नहीं होती. इन दिस वे, तो इस तरीके से जो वाटर है वो रिटेन्ड रहता है उनकी बॉडी में ही. इन दिस वे दे रिटेन द वाटर, जो भी पानी उन्होंने पिया है, द वाटर दे ड्रिंक फॉर a long period of time. Next. Now animals can teach us about coexistence and universal brotherhood. Animals हमें coexistence, साथ में रहना, ब्रदरहुड, भाईचारा सिखाते हैं. कमेंट ऑन योर व्यू. गोलू ग्रोज अ नोज से इसका आंसर आपको देना है. तो गोलू ग्रोज अ नोज में क्या हुआ था, जो पाइथन था उसने हेल्प की थी बेबी एलिफेंट की और उसको सेव किया था क्रोकोडाइल से. सो एवरीवन ऑन अर्थ इज, everyone on अर्थ इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो दिस co-dependency and coexistence bring together various species, like we saw the python helping the baby elephant which saved his life from a crocodile. हालांकि उसका नोज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था लेकिन फिर भी लाइफ उसकी बच गई थी. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 7th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.